سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی مثل ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان آپ انتظار کرتے ہیں اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ آج الف لام میم میں قیامت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قیامت کی نشانیاں تو ہیں، مگر کیا خود قیامت حق ہے؟ البتہ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہو سکتا ہے، مگر دیگر مذاہب کیا کہتے ہیں؟ قیامت کس طرح سے رونما ہوگی؟ کیا معاملات ہیں؟ اور پھر کیا قیامت سے پہلے کوئی ایسا شخص آئے گا جس کا انتظار دیگر مذاہب بھی کر رہے ہیں، جس کو مسیح کہا جائے یا پھر امام کہا جائے یا پھر ہادی برحق کہا جائے، یا وہ جو قوموں کو جوڑ دے گا اور خدا کے راستے پہ لے آئے گا، یا وہ جو لوگوں کی رہنمائی کرے گا، ان کو گناہوں سے نجات دے گا اور ان کو حق کے راستے پہ گامزن کرے گا؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم اس نتیجے پہ آج پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم مذاہب عالم کا آج مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف ایک ایسا مذہب ہے جو قدیم ترین مذاہب میں سے ہے، جس کی بنیاد آئی اور اس کے بعد آج بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور تعداد کے حوالے سے بڑی اکثریت یعنی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پھر قیامت ہی کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اشارہ دیتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گی، اور اس سے پہلے بھی ایک ایسا امام آئے گا جو ہمیں آپ سے، آپ کو ہم سے جوڑ دے گا اور ہم دونوں کو حق سے جوڑ دے گا، جو باطل قوتوں کو مٹا دے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے بھی مذاہب ہیں کہ جن کو شاید ہم یقینی طور سے بہت سارے خدا والے سمجھتے ہیں، مگر ان کے پاس بھی کوئی ایسا اوتار ہے، کوئی ایسا ویچر ہے جو آج کے زمانے میں یا کل کے دن آئے گا اور اس کو امام کی یا خدا کی حیثیت حاصل ہوگی۔ ہم آج اس پہ بہت ہی گہرا جائزہ لیں گے۔ میں اپنے درمیان موجود بہت ہی شائستہ اور پیارے مہمانوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی موجودگی سے مجھے بہت فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مسیحی اسکالر موجود ہیں، پاسٹر غزالہ شفیق صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ میں ساتھ ساتھ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان عالم دین ہیں، اور اس سے پہلے پروگرام میں تشریف نہیں لائے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ جناب علامہ یوشا ظفر حیاتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے آج کے تیسرے مہمان، آپ کا تعلق ہندو مذہب سے ہے اور پاکستان میں ہم بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں ہندو بھائیوں کے ساتھ، اور ان کو آزادی ہے قائد اعظم کے پاکستان میں ہر طرح کی مذہبی رسومات کی انجام دہی میں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں پنڈت راما سخدا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، آج کے پروگرام کا آغاز ہوا جاتا ہے اور میں سب سے پہلا سوال ہی میڈم غزالہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کانسیپٹ ہے قیامت کا؟ کرسچینٹی میں کانسیپٹ آف اینڈ آف دا ٹائم ہے، نہیں ہے، اور کیسے ہے؟ کیا نشانیاں ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ تھینک یو۔ آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں فرمایا کہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ماضی گزر چکا، حال میں جی رہے ہیں اور آنے والے وقت کے بابت ہم نہیں جانتے سوائے کلام حق جو اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو قیامت ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے بارے میں ساری قومیں کوئی نہ کوئی کانسیپٹ رکھتی ہیں، لیکن مسیحت میں یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ٹھوس شواہد پر مبنی ہے۔ قیامت کا مطلب ہے جی اٹھنا، کھڑے ہو جانا، قیام، جیسے آپ نماز پڑھتے قیام کرتے۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ دیگر عقائد کے میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ مرے، صلیب پر انہوں نے جان دی، 3 دن دفن ہوئے، ٹھیک ہے، زمین کے اندر رہے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور بائبل مقدس قیامت کا تصور، جیزس نے خود کہا کہ قیامت میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، کیونکہ وہ خود جی اٹھے ہیں، انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ تو ہمارے پاس ایک سالڈ ایویڈنس ہے، اور جیزس نے کہا جیسے میں جی اٹھا ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی میری طرح جی اٹھیں گے۔ میں پہلا پھل ہوں، میں پہلوٹا ہوں جی اٹھنے والوں میں، اور میرے ماننے والے جس طرح میں جی اٹھا ہوں اسی طرح جی اٹھیں گے۔ تو قیامت کا جو سالڈ ایویڈنس ہے وہ ہمیں کلام خدا میں سے ملتا ہے، اور اس کی شہادت خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی ذات مبارکہ سے دی۔ تو اس وجہ سے قیامت کا جو عقیدہ ہمارا ہے وہ میں یہی کہوں گی کہ حقائق پر مبنی ہے، اور اس کی بہت ڈیٹیل ڈاکٹرین اس کے اندر موجود ہے۔ تصور مہدیویت ہے، امام مہدی یا کسی لیڈر کا آنا قیامت سے پہلے ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کوئی آئے جو یونائٹ کرے؟ ایسا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کرسچینٹی میں؟ نہیں، اب بھی بس جیزس کرائسٹ آئے، ہی واز
द लास्ट वन, जिसके ऊपर क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शरीयत और अंबिया तो यूहन्ना तक थी। अच्छा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट की जो कुदरत है उसकी बिशारत दी जाएगी। अच्छा। और जीसस क्राइस्ट जब ज़मीन पर थे और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं, तब भी उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगा। अब वापस एक ही हस्ती ने आना है और वो है हज़रत ईसा, जिसको आप कहते हैं, हम यसु मसीह कहते हैं। उसके बारे में वाज़ेह डॉक्ट्रिन यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अल्लामा यूसुफ ज़फ़र हयाती साहब, जैसे कि मैडम फरमा रही थी कि ये तो कॉन्सेप्ट है कि कोई वापस आएगा, और इस्लाम भी इस बात का कायल है कि ईसा अलैहिस्सलाम वापसी आएंगे। अलबत्ता ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तसव्वुर महदवियत का क्या आगाज़ है, वो कौन है, क्या उनके साथी होंगे या उनके फॉलोअर होंगे, या फिर इस तरह का मामला होगा कि दोनों मिल के हक़ की जंग लड़ेंगे और बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम अगर तमाम अदियान और मज़ाहिब का मुतालिया करें जी, तो हर मज़हब अपने अंदाज से किसी आने वाले की बात ज़रूर कर रहा है। हो सकता है कि वो जिस तरह मैडम ने कहा कि हज़रत ईसा तशरीफ़ लाएंगे और वो आखिरी फ़र्द होंगे जो खुदावंद मुताल की जानिब से आएंगे, या अगर हम यहूदियों की जानिब जाएं तो उनके यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट है कि किसी ने आना है। ठीक। हिंदू मज़हब में हमें काल की अवतार का कॉन्सेप्ट मिलता है कि किसी ने आना है। इसी तरह अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अक़वाम जो पाई जाती हैं या मुख्तलिफ़ मज़ाहिब जो इस वक्त दुनिया में पाए जाते हैं, अगर आप उसका बड़ा ब्रीफली अगर आप जायज़ा लें, मुताला करें, तो आपको हर मज़हब में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसे आना है। अच्छा, हर मज़हब में? हर मज़हब में मुख्तलिफ़ नामों से कोई ना कोई ऐसी शख्सियत ज़रूर मौजूद है कि जिसने आना है। अच्छा। और जो एक दफ़ा, चाहे एक दफ़ा ही सही, वो ज़मीन को दोबारा खुदा की आइडियल ज़मीन बना देगा। सुभान अल्लाह। जो ज़मीन पर खुदा का आइडियल दीन लेके आ जाएगा, जो ज़मीन पर खुदा की वहदानियत का उस तरह प्रचार करेगा जिस तरह खुदा चाहता है, वो बिल्कुल एंड है। इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि ठीक है हमारे मसीही भाइयों का ये कॉन्सेप्ट है कि जनाब ईसा आखिरी नबी थे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। सही। और आखिरी नबी के बाद फिर हमारे यहाँ इमामत का सिलसिला है। सही। हमारे यहाँ खुलफ़ाए राशिदीन का सिलसिला है अहले सुन्नत में, और शिया मज़हब में इमामत का सिलसिला है। और हम अपने आखिरी नबी रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में ये बात करते हैं। यानी हमारी अपनी एक, देखें, एक दिली ख्वाहिश होती है इंसान की कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए। ये इनफरादी ख्वाहिश है। जब हम माशरे की जानिब जाते हैं तो माशरे की भी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा माशरा सबसे बेहतर माशरा हो जाए। लेकिन मैं उसकी तरफ आऊँगा बाद में, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ रिवायात की, कि रसूलुल्लाह ने अपनी रिवायात में ये बात की है कि मेरा जो 12वां इमाम है वो आएगा, दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा। अच्छा, एक हसीन इत्तेफाक है, अगर मैडम मेरी तस्वीर फरमाएं, कि ख़ुद जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो अपोस्टल्स हैं, जो मानने वाले शागिर्द हैं, वो भी तादाद में 12 हैं गालिबन। जी, शागिर्द 12 थे। शागिर्द 12 हैं। अपोस्टल्स, हवारी कह लें। हवारी जो हैं, ये खूबसूरती है। नहीं, आप जिस तरह हवाला दे रहे हैं, मैं इस खूबसूरती को मिला रहा हूँ। अलबत्ता रामा सखत साहब, मैं आपके हवाले से जानना चाहता हूँ, हिंदू कॉन्सेप्ट क्या कहता है? किसी अवतार का, किसी आने वाले का इंतजार कर रहा है, कोई लीडर है जो भी आएगा, या कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, किताब खत्म हो गई और अब कोई नहीं आएगा? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस रब्बानी साहब। और मैं मोहतरमा गज़ाला शफ़ी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे आलिम यहाँ पर ज़फ़र हयाती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बड़ा कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि सब जने यूनाइट होकर सिस्टम को समझें और एक्चुअल जो चीज़ है उसको समझे कि किस तरीके से हम जो आपस में अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का। तो मैं अकॉर्डिंगली हमारे जो लिटरेचर है भगवद गीता के हिसाब से और तो 3 लिटरेचर जो ऐसे हैं जो प्राइम लेवल पे है, जो हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्टली। हम लोग जो रीड करते हैं, तो जो भगवद गीता है वो हमारी फाउंडेशनल स्टडी है। अच्छा, इस तरह बेसिक स्टडी है।
उसको हम मैट्रिक लेवल की स्टडी को उसको वो करते हैं। और भगवत गीता से ऊपर जो है फिर श्रीमद् भागवत महापुराण है, वो है एक्टिविटी ऑफ द लॉर्ड, अच्छा, भगवान के जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने कार्य उसका, तो वो जो है ग्रेजुएट स्टडी है। ठीक। और उसके बाद जो है चैतन्य चरितमृत है, जो लॉर्ड चैतन्य आए थे तो उन्होंने जो पूरा सारा काम किया उसके बारे में है। तो वो जो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। अच्छा। तो ऐसे 3 लिटरेचर जो प्राइम लेवल पे है, जो हम लोग रीड करते हैं। ऐसे तो जो हमारे वेद व्यास मुनि है, जो लिटरेचर इनकारनेशन है, ठीक, तो उन्होंने 18 पुराण, 108 उपनिषद और 2 हिस्ट्री, जिसको कहते हैं रामायण और महाभारत, अच्छा, ये उन्होंने जो है पूरा लिखा है। ये स्क्रिप्चर्स हैं सारे। जी जी, ये स्क्रिप्चर है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण से मैं रेफरेंस दूंगा। मेरे पास 4 एविडेंस है, अच्छा, रेफरेंस है, जिसमें कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है। कल की अवतार क्या है ये? जी, कल्कि अवतार जो है ये भगवान का ही एक अवतार है, जो आएगा? जो आएगा, अच्छा, जो कलयुग के एंड में आएगा। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट बताया गया कि 4 युगों का साइकिल होता है। अच्छा, जी, और उनकी एज भी बताई गई है। तो जो सतयुग है, तो सतयुग की जो एज थी वो 17,28,000 साल, 17, ये सतयुग की एज थी। अच्छा, एक एरा है, एक एज है। जी, एक एज एक है। जमाना है, ठीक। उसके बाद जो है फिर दूसरा ज़माना आता है, जिसको कहते हैं त्रेता युग, जिसमें भगवान राम आए। ठीक और है। भी भगवान के अवतार आते हैं, लेकिन उसमें भगवान राम जो है वो मुख्य रूप से हम उसको फॉलो करते थे। और उसकी जो एज है वो 12,96,000 है। अच्छा, और उसके बाद जो है दूसरा एक ज़माना आता है, जिसको कहते हैं द्वापर युग। अच्छा, तो द्वापर युग की जो एज है वो 8,64,000 है, ओहो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए, जिन्होंने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी। ठीक, उसके बाद जो है जो लास्ट एज आती है, लास्ट ज़माना जो अभी चल रहा है, कलयुग जिसको हम बोल रहे हैं, ये कलयुग है? दौर, जी कलयुग। इसकी जो एज है वो टोटल बताई गई है 4,32,000 साल, 4,32,000 साल। और कितना टाइम हो गया वैसे अंदाज? जी, इसमें जो है द्वापर युग से अगर हम काउंट करेंगे तो लगभग जिसमें से 5,000 साल गुजर चुके हैं। अच्छा, जी 5,000 साल, लेकिन 4 लाख साल आप बता रहे हैं अभी, जी, कुछ इस तरह की तादाद बड़ी 17 बाकी। लाख कुछ हज़ार। जी। अच्छा, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है। मैं इस पे एक मुख्तसर सा वफ़ा लेना चाहता हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और खूबसूरती नज़र आ रही है मुझे। अलबत्ता एक चीज़, एक कॉमन एजेंडा जो अब तक वफ़े से पहले जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, वो ये कि ये ज़माना जो भी है आखिरी ज़माना है और इसके बाद किसी और ज़माने के इंतज़ार हमें नहीं करना। लिहाजा इस ज़माने का कोई साहिब है, वो भी आखिरी साहिब होगा। एक मुख्तसर सा वफ़ा इस्लामी में आपका इंतज़ार है। जी, खुश आमदेद। अलिफ लाम मीम देखने वालों को आज अंदाज़ा है कि क़यामत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। मुख्तलिफ मज़ाहिब अपनी राय का इजहार कर रहे हैं अपने ही अंदाज़ में, और जो उनकी अकीदत है या जो उनका अकीदा है या जो उनका ईमान है, उसी पहलू में, उसी सड़क से गुजारते हुए हमें एक मंजिल तक लेकर आएंगे। मैं यहाँ पे गुफ्तगू कर रहा हूँ गज़ाला शफ़ीक साहिबा से। क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट को क़यामत के नज़दीक देखा जाए अगर, तो कोई निशानियाँ ऐसी हैं कि कुछ ऐसा होगा तो समझ जाना कि जीसस आने वाले हैं, क़यामत करीब है, कोई मोटी मोटी निशानियाँ? जी बिल्कुल। मत्ती रसूल की जो अंजील मुक़द्दसा है, जो मत्ती रसूल ने लिखी है, उसका 24वां बाब सारी क़यामत की निशानियों को बड़ी वजाहत से बयान करता है। अच्छा, जी। और लेकिन वही बात है कि उस घड़ी की बाबत बार बार लोगों ने पूछा कि एग्जैक्ट हमें बता दे वो घड़ी, वो क़यामत कब आएगी। तो वो कहा गया कि वो सिर्फ खुदाए कादर के अलावा उस घड़ी को कोई नहीं जानता, लेकिन निशानियां बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान। क्या निशानियां? जैसे कि निशानियां अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ कि यही जो आजकल हो रहा है कि हर तरफ भूचाल आएंगे और काल पड़ेंगे, इंसान का दुश्मन होगा, मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, इंसानियत दम तोड़ती हुई नजर आएगी। ये तो चंगेज़ खान के दौर में भी था, हलाकू खान के दौर में भी था। जो फिजिकल डिजास्टर हो रहे हैं, जो इतने ह्यूज पैमाने पे, पहले होती थी, बीमारियां आती थी, बट अब जैसे अब ये कोरोना को ही देख लें, एक कितनी बड़ी वबा जिसने पूरी दुनिया को मफलूज करके रख दिया। तो ये क़यामत की पूरी निशानियां बाइबल मुकद्दस में दी हुई हैं कि जब ये चीज़ें होते देखो तो समझ लो कि वक्त नज़दीक है। अच्छा। तो अपने आप को तैयार रखो कि उस घड़ी, उस की बाबत कोई नहीं जानता। हाँ, जब जीसस क्राइस्ट आएंगे उसके बारे में लिखा है कि वो
कोई छुपी हुई बात नहीं होगी, वो सबको ऐसे ही नज़र आएगा जैसे बिजली कूद के एक पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है। वो ऐसे सबको, और जीसस जब ऊपर उठाए जा रहे थे, उन्होंने कहा, अपने शागिर्दों ने उस वक्त भी पूछा, अच्छा तू बता दे, अब तो आप जा रहे हैं, आप अभी अभी बता दीजिए। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, उस घड़ी की बाबत सिर्फ खुदा जानता है, और उसको नहीं बताया गया और पर्पसफुली नहीं बताया गया। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि जैसे तुम मुझे ऊपर जाते हुए देख रहे हो, फरिश्ते मौजूद थे, शागिर्द मौजूद थे, रसूल मौजूद थे, उन्होंने कहा जैसे मुझे ऊपर जाते हुए देख रहे हो, इसी तरह तुम मुझे वापस आते हुए देखोगे। ये तो आप इस्लाम का कॉन्सेप्ट बता रही हैं, क्योंकि इस्लाम कहता है कि उनको ऊपर उठा लिया गया, ऊपर जाते हुए देखने का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम का ही है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात मैंने देखी। अलबत्ता अल्लामा साहब, मैं यहाँ पे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि खुद क्रिश्चियनिटी में भी क़यामत की निशानियाँ बता दी गई हैं। ये सारे वबाल, ये ज़लज़ले, ये कहत, ये आलाम, ये बीमारियाँ, ये सब कुछ हमें एक एंड ऑफ द टाइम की तरफ लेके जा रही है। अब एंड ऑफ द टाइम से पहले हमें कुछ तैयारियाँ करनी है, किसी के इंतज़ार की कोई तैयारी? देखें अवैस भाई, सबसे पहले तो मैं अपना यहाँ पर एक तज्ज़िया बयान करना चाहूँगा कि हमें खुदा की जितनी भी इस्तिलाहात हैं ना, खुदाई इलाही इस्तिलाहात जो हमारी ज़िंदगी में हैं, हमें दीन से मिलती हैं, उसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसे हमें देखना चाहिए, ठीक है ना। वबा ठीक है, बीमारी ठीक है, जंग ठीक है, जैसे आपने चंगेज़ ख़ान और हलाकू ख़ान का ज़िक्र किया, मैडम ने यहाँ पर कोरोना का ज़िक्र किया। लेकिन जब हम अपनी कौम से निकल के और पाकिस्तान से निकल के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पर हमें क़यामत का कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता। अच्छा, क्योंकि वो जी रहे हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और वहाँ पर हर चीज़ सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। यानी आप किस माशरे की तरफ इशारा करें? यूरोप का माशरा, यूरोप सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनाते हैं एंड ऑफ द टाइम के ऊपर। हाँ, बना रहा है, वो मखसूस अफराद हैं जो बनाते हैं, पूरा माशरा ये काम नहीं कर रहा। हम में और उनमें क्या फ़र्क है कि हम मायूस होके, नाउम्मीद होके बस इस चीज़ की ख्वाहिश करने लग गए हैं कि यार बस क़यामत आ जाए, मामला ख़त्म हो। अच्छा, उनमें से कुछ अफराद ऐसे हैं जो ये कहते नहीं, क़यामत नाम की भी कोई चीज़ है, हमें उसको भी फोकस करना चाहिए, उसको भी अप्रोच करना चाहिए, देखना चाहिए। मूवी ज़ाहिर है पूरा माशरा तो नहीं बना रहा ना, कुछ अफराद बना रहे हैं। तो ये हमें इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखने की ज़रूरत है। अच्छा, कि और फिर तमाम मज़ाहिब और तमाम फ़िरक़ों से आप इस कॉन्सेप्ट को उठाएं। मतलब मेरा वो वाला सवाल ज़रा मुझे समझा दीजिए कि बहुत से लोग बेताब हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किस रिश्ते से एक साथ चलेंगे और होंगे एक साथ, तो क्या मामला होगा और किस रास्ते पे गामज़न होंगे? देखें, सबसे पहले हमें रास्ता समझने की ज़रूरत है। देखें, अगर हम ये कहेंगे कि जनाब इमाम आएंगे, ज़हूर करेंगे, जनाब ईसा भी उनके साथ आएंगे और सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे और ज़िंदगी हमारी, नहीं, हमें सबसे पहले ज़हूर के क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस तरह, इन सवालात के पीछे जाना होगा। अच्छा, पहले हम इसे तो डिफ़ाइन करें कि हम किसी के आने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। अगर हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि कोई जो आने वाला है वो किस लिए आ रहा है, हमारे लिए आ रहा है, खुदा के लिए आ रहा है, उसके आने का एक वक्त ये होता है कि हम आपसे कोई बात करते हैं, आवाम कोई बात करती है और वो बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है और सब उस पर यकीन भी कर लेते हैं। आया इस तरह का मसला है या नहीं, ये कोई इलाही कॉन्सेप्ट है जिसके तहत कुछ ऐसे अफराद खुदावंद मुताल या उनका ज़हूर होगा या वो वापस बुलाए जाएंगे। जो तो वाज़ेह हो गया ना कि वापस बुलाए जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम वापस आ रहे हैं, रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट हम कह रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आमद सानी कह रहे हैं उसको, हम इमाम ज़माना के ज़हूर की बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जब जनाब ईसा आएंगे तो इमाम ज़माना की इक़्तिदा में वो नमाज अदा करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जनाब ईसा जब आएंगे तो वो इमाम ज़माना की इक़्तिदा में नमाज अदा करेंगे। यानी दोनों अल्लाह वाले अल्लाह का नाम ले रहे होंगे दोनों, बिल्कुल। और देखें, ये कॉन्सेप्ट तो हमारा बनाया हुआ है कि कौन शिया, सुन्नी, फलां, और जो खुदा का होगा आखिरी ज़माने की निशानी ये है कि वो सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होंगे। अच्छा, वन गॉड। जी जी जी, एक खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो चाहे किसी कौम कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा होगा, वो हज़रत इमाम ज़माना का प्लेटफॉर्म होगा। अच्छा, और उसके अंदर अफराद चाहे किसी कौम, रंग, नस्ल, कबीले से ताल्लुक़ रखते हों, वो वहाँ पर जमा होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये कहें कि इमाम ज़माना के कोई वॉर लॉर्ड्स हैं जिनको खुदा जो है वो किसी आइलैंड में उनकी तरबियत कर रहा है और वो वहाँ पर
دیو ہیکل قسم کے 313 افراد ہیں صحیح. جو امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو اچانک وہ نکل ہم میں کے سے آ کوئی جائیں ہوں گے. گے. وہ ہم میں سے ہی ہوں گے. میں پنڈت کس طرح صاحب سے ہوں گے؟ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی بات چل رہی تھی کل کی اوتار کی جانب, تو وہ اوتار کیسا ہے, اس کا مشن کیا ہوگا, اس کے آنے کا مقصد کیا ہوگا اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ جی میرے پاس یہ 4 ریفرنسز ہیں جی. جس میں بتایا گیا کہ کل کی جو اوتار آئے گا وہ گھوڑے پہ سوار ہوگا. گھوڑے پہ سوار ہوگا. جی. اس سے پہلے کوئی اوتار گھوڑے پہ سوار رہا ہے؟ میرے خیال سے نہیں, کیونکہ میں نے ڈفرینٹ چیزوں پہ دیکھا ہے, ٹرٹل پہ سوار دیکھا ہے, شیر کی سواری دیکھی ہے, مگر گھوڑے کے لیے سواری ایک نئی چیز ہے. جی ہاں, گھوڑے پہ نہیں دے. تو کل کی اوتار کا جو ریفرنس دیے ہیں اس میں گھوڑے کے دیے ہیں, اور اس کے پاس جو ہے نا تیر ہوگا, وہ تیر سے سب کو مارتا ہوا چلا جائے گا جو گنہگار ہوں گے. سب کو گنہگاروں کا پورا صفایا کر دے گا اور سچائی کو اسٹیبلش کرے گا. اچھا. جی. تو یہاں پہ ریفرنس ہے جو شریمد بھاگوت مہا پران جو ہے اس میں 1 کینٹو 3rd چیپٹر اینڈ 25 ورس, اس کے اندر ریفرنس دیا ہے جس میں کل کی پران آئے گا, اور اس کا پلیس بھی بتایا, اور کس کے گھر پہ وہ جنم لیں گے وہ بھی بتایا. اچھا. جی, وہ پورا ان کا جو نا فیملی بیک گراؤنڈ بتایا گیا اس میں. اچھا. لیکن یہ الگ الگ ایک ہی اس میں نہیں ہے, الگ الگ کینٹوز کے اندر ہے. صحیح ہے. یعنی مدر کا نام جو ہے وہ 12 کینٹوز کے اندر ہے, صحیح. اور جو پتا کا نام ہے وہ جو ہے 1 کینٹو میں دیا ہے. صحیح. اس طریقے سے تو جو 1 کینٹو میں جو ہے نا وہ پلیس بھی دیا ہے, اور ان کے جو پتا کا نام ہوگا وہ ہوگا وشنو یشا, ایک برامڑ ہوگا. اچھا. اور سنبل نام ایک گاؤں ہے جو یو پی کے اندر مراد آباد میں آتا ہے. اچھا. جی, انڈیا کے اندر. یعنی یہ انڈیا میں ہی آئے گی؟ جی, انڈیا میں آئے گا. تو باقی یورپ والے کیا کریں گے, وہ کیسے مانیں گے؟ جی, وہ سب جگہ پر پھر جو ہے نا وہ کرے گا. اچھا. یعنی امن پھیلائے گا. گھوڑے پہ ہی؟ جی, گھوڑے پہ. تیر لے کے؟ جی. ٹھیک ہے. امن کیسے پھیلے گا؟ ویسے یہاں تو جنگ کے مناظر آپ کھینچ رہے ہیں, کیونکہ وہ تو سب کو زخمی کر رہے ہیں یا ہلاک کر رہے ہیں, یہ ذرا بتائیں. ایکچولی ایسا ہے کہ جب ایسا بتایا گیا کہ 4,32,000 سال کا کلیوگ کا ایج ہے, تو جب اس کے 10,000 سال گزر جائیں گے, اچھا, اس کے بعد جو ایسا مطلب جو ہے نا وہ آ جائے گا ٹائم جس میں انسان کو کھا رہا ہوگا. اچھا, ویجیٹیبلس نہیں ہوگا. او ہو. یہ اس طریقے سے ہمارے شریلا پربھوپاد جی جو ہے وہ اسکان کے فاؤنڈر آچاریہ ہے. اچھا. تو انہوں نے ویسٹرن میں بھی سائڈ پہ بہت زیادہ لوگوں کو پریچنگ کیا, اور پورے ورلڈ میں انہوں نے بتایا. اچھا. تو انہوں نے ایک کنورسیشن کے اندر یہ پورا ڈسکرائب کیا ہے, اچھا, جس میں جو ہے ایک جو ویسٹرن کوئی جو ہے نا وہ اسکالر ہے اس کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک اور وفے کی جانب بڑھ رہے ہیں ہم لوگ, اور ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت, اور جس کی نگاہ زلزلے عالم افکار. لہٰذا ایک کوئی لیڈر چاہیے اس وقت بھی, کیونکہ آج بھی انسان کو تو کھا رہا ہے, کہیں نہ کہیں سے زخم دکھ دے رہا ہے, اور لوہا جب لوہے پہ وار کرتا ہے تو چوٹ زیادہ لگتی ہے, آواز زیادہ اٹھتی ہے. اب اس آواز کو سننے والا آنا چاہیے. ایک مختصر سے وقفہ الفلامی میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو اختتام پذیر ہے. قیامت کے حوالے سے, امام آخر کے حوالے سے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, اور پھر دیگر مذاہب کے کیا افکار ہیں, کیا نظریات ہیں, کیا راستے ہیں, اور کون سی منزل ہے جس کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں. میں پنڈت صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب سمجھ لیں کہ آخری کلیوگ جسے ہم کہتے ہیں, آخری زمانہ آ گیا. آخری زمانے میں ہماری کیا ذمہ داری ہیں, پہلی چیز, اور دوسری چیز یہ کہ دیگر مذاہب کو جوڑنے والا آ رہا ہے یا مزید توڑنے والا آ رہا ہے, کیونکہ لوگ تو بکھر رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, ایک دوسرے سے دور ہو جا رہے ہیں, فرقے, مسالک, مذہب, ادیان توڑ رہے ہیں بجائے جوڑنے کے. اب جو صورتحال ہے, تو جو کل یوگ میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کل کی اوتار کا ذکر ہو رہا ہے, وہ اس کا کام کیا ہے, آ کے کرنا کیا ہے, وہ جوڑے گا لوگوں کو؟ جی, اس کا جو کام یہ ہوگا کہ جب ادھرم بڑھنے لگتا ہے, یعنی نیگیٹو جو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پازیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تب جو ہے بھگوان نے یہ اسٹیٹمنٹ جو دیا ہوا ہے, مطلب اوتھینٹیکیٹ ہے کہ بھگوان آتے ہیں اس دھرتی پر. یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانیر بھوتی بھارتا اب یدھانم ادھرمسیہ تداتمانم سرجامیم. یعنی بھگوان آتے ہیں, یعنی دھرم کو پھر سے اسٹیبلش کرنے, اور کیا کرنے کے لیے 3 اس کے ریزن بتائے. اچھا, پریترانایا سادھونام, یعنی جو ڈیووٹی ہے, اچھا, یعنی جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں, جو اللہ کو ماننے والے, بھگوان کو ماننے والے, ان کو وہ کیا کریں گے, پروٹیکشن دیں گے. اچھا, جی, ان کو پروٹیکٹ کریں, ان کو پروٹیکٹ کریں گے. پہلا ہو گیا. جی, پہلا ہو گیا. پریترانایا سادھونام وناشایا چ دشکرتام, اچھا, یعنی جو نیگیٹیوٹی ہے, جس کو ہم لوگ ڈیمنس بولتے ہیں, اسور, راکشس بولتے ہیں, ایولز, ویلنز, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وناشایا چ دشکرتام دھرم سنستھاپنا دھایا. تو دھرم جو ہوتا ہے, جو ریلیجن ہے ایکچوئل سناتن جو ہمارا ریلیجن, اس کو
फिर से रीस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा, फिर से रीस्टैब्लिश करें। जी, reestablish ठीक है, करते हैं। ठीक है। तो मैं जब- मैडम गजाला शफी आपसे पूछना चाहता हूँ, जीसस वापसी आ रहे हैं, विद पावर्स आ रहे हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को मैच करते हुए समझ रही हैं कि वो और एक मुस्लिम लीडर, मुस्लिम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुसलमान ज़्यादा उनसे आ गए, अलबत्ता मेरे हिसाब से तो वो यूनिवर्सल लीडर है, वो किस तरह साथ चल रहे हैं? आपको लगता है ये दोनों मज़ाहिब या और मज़ाहिब जो एक खुदा के मानने वाले हैं वो जुड़ के एक साथ चल जाएंगे, आगे चल सकते हैं? देखिए, पहले तो एक बहुत अच्छे तरीके से समझ ले कि बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। ये नहीं कहा कि खुदा ने क्रिश्चियनों से मोहब्बत रखी। वाह वाह वाह, खुदा रब्बुल आलमीन है सुभान अल्लाह। और वो दुनिया की हमेशा बात करता है। और तख्ते अदालत पे भी लिखा हर कौम, कबीला, उम्मत और अहले ज़बान में से लोग उसके सामने हाजिर होंगे। वो फेवरेटिज्म नहीं करता, वो इंसानों की मानत नहीं सोचता, और वो मज़ाहिब को जोड़ने की बात करता है। खुदा, जीसस क्राइस्ट कहते हैं मैं अपनी सलामती देता हूँ इंसानों को। ही इज़ द किंग ऑफ पीस। और फिर कुदरत और इख्तियार का मालिक वो है। वो जब अदालत के लिए, अब लास्ट उसने आना, अदालत करनी है। बस थोड़ी सी मैं वजाहत चाहूँगी, क्योंकि जैसा कहा गया कि वो इमाम महदी के उसमें वो नमाज पढ़ेंगे। भी जो कुदरत और इख्तियार का मालिक है, जिसने अदालत करनी है, जो क्रिएटर है, जो सब चीज़ों के, कुरान मजीद में भी देख लें, सूरह आल इमरान देख लें, सूरह अल माइदा देख लें, सूरह मरियम देख लें, जो ज़िंदगी देने वाला है, तो वो किसी के पीछे क्यों चलेगा? जिसने पूरी ज़िंदगी एक चीज़ एस्टेब्लिश की, अब अपनी ही किंगडम को आकर ख़राब करेगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। लामा साहब कुछ जवाब देना चाहेंगे? अवैस भाई, पावर्स देखें, उनके पास, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं वो किसी के देखें, ये मुर्दों को ज़िंदा करना इस्लाम में भी पाया जाता है। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पत्थरों से गुफ्तगू की है। सही। हमारे अमीर अल मोमिनीन ने तो कब्र में लेटे हुए मुर्दे से गुफ्तगू की है, और जो ज़िंदा सामने लेट गया उसके ऊपर नमाज पढ़ दी तो वो मुर्दा हो गया। अच्छा। अगर हज़रत ईसा ने सिर्फ ज़िंदा किया है तो हमारे मौला ने जो है वो उसे ज़िंदा को जो है वो मुर्दा कर भी दिया। यानी दोनों दो तरफा चीज़ें करके दिखाई हैं। या हमारे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, हमारे 5वें इमाम, उनके सहाबी हैं अबू बसीर। अच्छा। नाबीना हैं। अच्छा। नाबीना है। वो आके सवाल रेस करते हैं, शागिर्द है ना, सवाल तो उठाता है वो हर चीज़ के बारे में। वो आके कहते हैं कि इमाम, जब आप जानशीन हैं रसूल के जानशीन, अभी मैं गॉड नहीं बना रहा हूँ उनको, रसूल के जानशीन की बात कर रहा हूँ कि जो हर काम बेइज़्निल्लाह अंजाम देते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह के पास जो है वो खुदावंद मुताल ने मोजज़ात की ताकत दी है, तो आपके पास ये ताकत मौजूद है। कहा कि जब हम जानशीन हैं तो क्यों नहीं होंगी हमारे पास। अबू बसीर नाबीना हैं। अच्छा। एक मरतबा मौला करीब बुलाते हैं और उनकी आंखों पे हाथ फेरते हैं। वो नाबीना जो बिल्कुल नाबीना हैं और यानी पैदाइशी नाबीना हैं, वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने दीवारों के अंदर और दीवारों के बाहर सब कुछ देखना शुरू कर दिया। ये तो जीसस भी करते थे। जीसस करते थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप ये क्वालिटी की अगर आप बात कर रहे हैं कि ये उनकी खुसूसियत है इसलिए वो खुदा हैं, अच्छा, नहीं, खुदावंद मुताल रब्बुल आलमीन, उसने ये तमाम तर खुसूसियात अपने आइम्मा को दी हुई हैं। अच्छा, पावर्स दी हैं, ये पावर्स, अथॉरिटी मौजूद है। ठीक है, ठीक है ना। हम उन अथॉरिटीज को सामने रखकर ये तो कह सकते हैं कि ये नुमाइंदा खुदा है, ठीक है, खुदा का नुमाइंदा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यही खुदा है। अच्छा, जो पूरी तारीख में हमें गलत फहमी नज़र आती रही है, चाहे मज़ाहिब आलम हो, चाहे मुख्तलिफ फ़िरक़े भी हों, कि मुख्तलिफ अफराद की, हम मुख्तलिफ अफराद की करामात को देख के भटक जाते हैं। सही है। और उसे कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, आम इंसान को हम कहीं पहुंचा देते हैं। ठीक ठीक। तो ये मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें एक खूबसूरत पहलू छुड़ गया। मैं इस मौजू को इस तरह से समेट रहा हूँ कि अभी बहुत सारी ऐसी प्यास और तशनगी बाकी है जो सवाल पूछ के इसराब कर सकती है। अभी मैंने मैडम गजाला शफीक साहबा से भी पूछना है, मैंने अल्लामा साहब से पूछना है, पंडित साहब से पूछना है, मगर वक्त मेरे पास बहुत कम है। आपको भी बहुत कुछ पूछना होगा, आप जुड़े रहिएगा। अगले हफ्ते फिर से हम बैठेंगे, बुध होगा, अलिफ लाम मीम होगा 5:05 पे, और हम समझने की कोशिश करेंगे खालिक हमसे चाहता क्या है, उसने किस बुनियाद के ऊपर मबादियात रखी थी, आगाज़ कहाँ से किया था और अंजाम कहाँ पे होगा, किसको वापस बुलाएगा, किसको किंग बनाएगा और किसको फॉलोअर बनाएगा। आज के प्रोग्राम में खुशामदीद मैं कहूँगा आने वाले दिन को, और साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं जनाब अल्लामा यूशुफ ज़फ़र हयाती साहब का, मैडम गजाला शफीक साहिबा का और रामा सखा दास साहब का। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का। अल्लाह की अमान में।